आर्मी ज्वाइन देयर पॉलिटिक्स, उनकी आर्मी ने फिर इंटरफेरेंस करना पड़ा क्योंकि मुल्क उनके हाथों से निकल रहा था। इन तमाम चीज़ों का किसी के मज़हब के साथ, किसी के रीजन के साथ, किसी की एज के साथ, किसी की फैमिली के साथ। What comes in our mind when we talk about the word extremism? The killing of innocent people, the bombs attacks, the terror activities, the killing of innocent peoples, the murders, the rapes, isn't it? What the whole world thinks about the extremism, that the presence of Islam and the presence of Muslims is the big reason of extremism, isn't it? Really? I think this is the reason according to their mind, according to their thoughts, but I don't think so. The whole world thinks that Islam is the basic reason of extremism. But let me tell you the definition of extremism. Your actions, your beliefs, your thoughts, your feelings, your attitudes towards the thing with the standard which you have set according to your personality, according to your mind, according to your family, according to your nation. अगर आप उस एक्टिविटी से, उस एक्शन में, उस बिलीफ्स में, उस आपकी फीलिंग्स, अगर आपने जो स्टैंडर्ड तय किया हो आप उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इट्स मीन दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म. लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म. योर एक्शंस, योर बिलीव्स, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द थिंग, जो आपने स्टैंडर्ड तय किया हुआ है, उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा अगर आपकी ये चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं, तो इट्स मीन दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म एंड यू आर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट. But the whole world blames Islam for the extremism. Why? Because they have just found extremism towards the religion of Islam. Whenever they heard the word extremism, they thought that Islam is due to this. Extremism is happening due to this. Islam is responsible for this. Extremists are not born, they are made. How they are made? They are made by the three different ways. There are three different roads that leads towards the extremism. Extremist has no religion, no age, no gender, no age. एक्सट्रीमिज़म किसी भी इलाके का हो सकता है. एक्सट्रीमिस्ट किसी भी एरिया का हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है, किसी भी रीजन का हो सकता है. ये लाजमी नहीं है कि वो रिलीजन इस्लाम के साथ ही बाउंड होगा. ये लाजमी नहीं है कि वो पाकिस्तानी ही होगा. ये लाजमी नहीं है कि मुसलमान ही होगा. ही कुड बी क्रिश्चियन, ही कैन बी ज्यू, ही कैन बी हिंदू, ही कैन बी सम अदर, ही कैन बी एथिस्ट ऑल्सो. ही कैन बी पाकिस्तानी, ही कैन बी इंडियन, ही कैन बी ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन. इवन अमेरिका में भी कितने ज़्यादा जो केसेज हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमिज़म ही हैं. What are the three different ways that leads towards the extremism? The first one is ideology, the second one is economy, and the third one is politics. But now here the question arises, how ideology? Ideology कैसे? First thing that leads towards the extremism is ideology. But in ideology there is always a fight between us versus them. यहाँ पर दो पार्टीज एक दूसरे के सामने आ जाती हैं. One thinks that he is superior to another and the other thinks that they are superior to the first party. Then what happened? तो फिर उसके बाद दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर. एक दूसरे से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं एक दूसरे को डाउन करने के लिए, प्रूफ करने के लिए दैट वी आर सुपीरियर टू देम एंड दे आर इन्फीरियर टू अस. और जो दूसरी पार्टी है वो ये मानने को तैयार नहीं होती है दैट वी आर इन्फीरियर. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक देमसेल्फ सुपीरियर टू द फर्स्ट पार्टी. लाइक व्हाट हैपेंड बिफोर द वर्ल्ड वॉर II, वट हिटलर डिड. अफ्रीकन ब्लैक पीपल के साथ क्या हुआ, उनके साथ कितना जुल्म और ज़्यादती की गई. दिस इज़ अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दैट लीड्स टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म. इट इज़ अ कॉमन बिलीफ that lack of education is the basic and the big reason of the presence of extremism. But I don't think so this is the basic reason. This could be the basic reason, but where it is written that a person who has achieved higher degrees and higher education will not do extremism, where it is written, it's not written anywhere. ये कहीं पर नहीं लिखा. Even the person who has achieved higher marks and higher degrees in his education career, he is also doing extremism. Why? Because of lack of mindset. Ideological extremism gets bigger when the technology comes in front of ideology. Like then what happened? Like a person who is sitting in the corner of Africa can approach easily a person who is sitting in the corner of New Zealand if the both minds get सेम ऑन इक्वल पॉइंट. अगर वो किसी एक पॉइंट पर आके उनका माइंड सेटअप एक हो जाता है, देन दे विल डू, दोनों वही करेंगे जो उनको बेहतर लगता है. एंड व्हाट दे विल डू, अगर उनका माइंड एक्सट्रीमिज्म है देन दे विल डू एक्सट्रीमिस्ट. They will not care about their family, they will not care about their religion, they will not care about their region, they will not care about their nationality, they will not care about their age, they will not care about their society. They will do the thing, this is the best for them. Social media has also increased the presence of extremism. Social media has also increased the incidents which is happening in the world in the recent era.
The second one is economy. Now, how question arises how economic condition of a country, how economic condition of a region causes extremism. Such countries whose economy is low, where the lack of opportunities, where there is a lack of facilities, where there is a lack of new jobs, the new youth, uprising youth of that country moves toward the extremism. Then the gap starts between the rich elite class and the poor class families. अमीर से अमीर तर स्टार्ट हो जाता है बनना और गरीब से तर होना शुरू हो जाता है। तो फिर एक वाज़ेह फ़र्क, एक लाइन ऑफ डिफरेंस दोनों के बीच में लग जाती है। तो अमीर समझता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब समझता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। स्टेट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो इस चीज़ को अरूज देती हैं। करप्ट लीडरशिप, पुअर स्टेट पॉलिसीज़, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ कॉजेज़ अ पर्सन टू बिकम एक्सट्रीमिज़म। तो फिर वो जो काम करता है उसको हम एक्सट्रीमिज़म कहेंगे। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन एड एजेंसीज़ एंड यूएन की ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो लैक ऑफ इकॉनमी है, जो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसके अलावा लैक इनइक्वालिटी का जो डिफरेंस है बिटवीन रिच एंड पुअर, दिस इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ अ पर्सन टू बिकम एक्सट्रीमिस्ट। इसके बाद जब वो अपना हक हासिल करने के लिए नाहक चीज़ें को इस्तेमाल करता है, वो कत्ल व गारत स्टार्ट करता है, वो चोरी चकारी स्टार्ट करता है, वो उसके अलावा आवारागर्दी स्टार्ट करता है, वो स्टेट के ख़िलाफ़ होना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट किया जाता है। एक्सट्रीमिज़म फिर प्रमोट होता है, इसके अलावा जो जितनी यूथ होती है वो उसको देखा देखी ज्वाइन कर लेती है। इन तमाम चीज़ों का किसी के मज़हब के साथ, किसी के रीजन के साथ, किसी की एज के साथ, किसी की फैमिली के साथ, किसी की नेशनैलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद ऑल दीज थिंग्स। हाउ द थर्ड वन कम्स इज़ पॉलिटिक्स। हाउ पॉलिटिक्स इज़ द बेस्ट थर्ड रोड टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज़म. It is only not the poverty that leads towards extremism. Politics is also the basic reason. How? What happened in Iraq, what happened in Iran, what happened in Syria, what had happened in Lebanon, Egypt and Lebanon, इन तमाम मुल्कों में क्या हुआ? Their politics was so much bad, their politics was so much corrupt that even their army joined their politics. उनकी आर्मी ने फिर इंटरफेरेंस करना पड़ा क्योंकि मुल्क उनके हाथों से निकल रहा था। जब आर्मी मुल्क में है तो पॉलिटिकल पार्टीज उनकी आर्मी के अगेंस्ट हो गए। देन देयर स्टार्ट्स अ वॉर बिटवीन आर्मी एंड पॉलिटिक्स। जब आर्मी भी कमज़ोर होगी, पॉलिटिक्स भी कमज़ोर होगी एक दूसरे के साथ लड़ के, देन द अदर कंट्रीज स्टार्टेड टू ज्वाइन दैट वॉर। When other countries started to come in their countries, then what happened? एक मुल्क ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट किया, एक मुल्क ने फ़ौज को सपोर्ट किया, एक ने हुकूमत को सपोर्ट किया, एक ने अपोजिशन को सपोर्ट किया। Then there started a fight between the own nation. जिस मुल्क में जंग हो रही थी उसी मुल्क के लोगों को नुकसान हुआ। नुकसान अपनी हुकूमत ने ही पहुंचाया। नुकसान कैसे पहुंचाया? दूसरे मुल्कों ने आकर इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दी। जिसका मुल्क था उसमें ही जंग हो रही है, किसी दूसरे मुल्क में हो ही नहीं रही है। जो लोग थे, जी पब्लिक थी, वही नुकसान उठा रही है। दिस ऑल हैपन ड्यू टू पुअर पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिक्स आपकी बहुत कमज़ोर होगी तो क्या होगा? आपकी अवाम अपना हक हासिल करने के लिए फिर ऐसी सी चीज़ें करेगी जिसको नहीं करनी चाहिए। वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाएगी, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डाउन करने की कोशिश करेगी, वो हुकूमत के अगेंस्ट ऐसा काम करेगी ताकि हुकूमत लेट डाउन हो, वो फ़ौज के अगेंस्ट ऐसा काम करेगी जिससे फ़ौज की बदनामी हो। ये तमाम चीज़ें सिर्फ अपनी ज़िद की वजह से होगी, बिकॉज ऑफ पुअर पॉलिटिक्स। करप्ट रजीम है अगर किसी भी मुल्क का, तो फिर क्या होगा? फॉरेन इंटरफेरेंस होती है। फॉरेन इंटरफेरेंस से मुल्क कमज़ोर होता है। वाई? व्हाट हैपेंड इन सीरिया? अमेरिका और रशिया एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए। मुल्क किसी और का था, जंगे कोई और लड़ रहा है। व्हाट हैपेंड इन इराक? क्या हुआ इराक के साथ? मुल्क किसी और के जंगे कोई और लड़ रहा है। व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान? मुल्क किसी और के जंगे कोई और लड़ रहा है आके। व्हाट हैपेंड इन इजिप्ट? व्हाट हैपेंड इन लेबनान? व्हाट हैपेंड इन शाम? देयर आर ऑल्सो अदर कंट्रीज जिसमें यही हुआ। व्हाट हैपेंड इन युगांडा, साउथ सूडान, सोमालिया? क्या क्या हो रहा है? मुल्क किसी और का है, फाइट कोई और कर रहा है। दिस ऑल हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर पॉलिटिक्स। फिर वहाँ की जब यूथ देखती है कि इनके मुल्क में आके कोई बाहर का बंदा आके जंग लड़ रहा है, इनके मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही, तो वो भी फिर उनको ज्वाइन कर लेती हैं। वो हुकूमत के साथ हो जाती हैं या तो अपना एक ग्रुप बना लेती हैं जो कि बाहर की इंटरफेरेंस को निकालना चाहती है। तो फिर वो जंग इधर कन्वर्ट हो जाती है और वो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो फिर ये तमाम जो यूथ है वो एक उरूज हासिल करने की कोशिश करती है और वो उरूज को हासिल करने के लिए फिर एक्सट्रीमिज़म को ही अपनाएगी। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद रीजन, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद एज एंड जेंडर एंड योर नेशनैलिटी। नाउ कम टुवर्ड्स द रिपोर्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सट्रीमिज़म का जो केस हुआ था वो ज्यूज़ की वजह से हुआ था। जब उनको अपना हक नहीं मिल रहा था, दे स्टार्टेड टू राइज अगेंस्ट द स्टेट पॉलिसीज़ एंड स्टेट रूल्स। उन्होंने स्टेट को ही स्टेट के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर दिया था ताकि स्टेट की पॉलिसीज़ को बदनाम किया जाए और अपना हक हासिल किया जाए। यूरोप में 43% ऑफ द केसेस वर रिपोर्टेड इन 2016 to 2017
ऑफ एक्सट्रीमिज़म। एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से जिन लोगों को नुकसान हुआ था वो केसेस 46% इंक्रीज़ हुए थे। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1861 से लेकर 1865 में जब अमेरिका सिविल वॉर में था, अपने ही मुल्क में एक जंग हो रही थी कालों के बीच में और गोरों के बीच में, तब क्या हुआ था, तब कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। वो क्यों हुआ था? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमिज़म। और इस सिविल वॉर में क्रिश्चियंस ने बहुत ज़्यादा सिविल वॉर पर प्रमोट किया था। उन्होंने फिर ब्लैक लोगों को बहुत मारा था, जुल्म व ज़्यादती की थी। उन्होंने फिर स्टेट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कहते उन्होंने मर्डर किया था, रेप्स किए थे। इसके अलावा इतनी हज़ार बेमिसाल मिसालें जो एक्सट्रीमिज़म की वजह से हुई। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन लास्ट डेकेड 71% of cases were reported in America just because of extremism. And what 71% of cases किसने किया? द राइट हैंड विंग जो पार्टीज़ हैं उन्होंने किया था, जो रिलीजन के सख्त अगेंस्ट होते हैं। उनका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। दे स्टार्टेड एक्सट्रीमिस्ट, they started to become extremists, they started to do activities like extremism, they started to kill others, they started to किसी को डराना धमकाना, किसी घर पे पत्थर मार के भाग जाना, किसी को मेंटली तंग करना, ये तमाम एक्टिविटीज़ उन्होंने स्टार्ट कर दी। और 71% ऑफ cases were reported like this. 26% of cases were reported just because of Islamic activities, इस्लाम की वजह से या इस्लाम का लबादा ओढ़ के जिन्होंने इस्लाम को बदनाम किया था, वो केसेस 26% थे अमेरिका में। और इसके अलावा जो बाकी केसेस बचते हैं वो फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में किए हुए थे। अकॉर्डिंग टू कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी रिपोर्ट 10 में से 5 लोग काले ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी एक्सट्रीमिज़म को फेस किया हुआ है, जिन्होंने कभी न कभी एक दफ़ा लाजमी किसी दूसरे बंदे का ताना सुना हुआ है कि तुम काले हो, तुम अफ्रीकन हो, तुम यहाँ से जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। जॉर्ज फ्लॉयड जिसको भी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मारा है, वो भी एक एक्सट्रीमिज़म का कैसा दर्दनाक केस है कि जिसको कितना बेदर्दी से मारा है, जिस पर कोई तरस नहीं किया गया। सो ऑल ऑफ दिस डाटा वाई आई पुट इन माई वीडियो, क्यों मैंने आपके सामने रखा है? जस्ट बिकॉज टू प्रूव दैट एक्सट्रीमिज़म इज़ नॉट बाउंडेड टू इस्लाम। एक्सट्रीमिज़म को हम इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ लिंक नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज इस्लाम मीन्स पीस। इस्लाम want to live peacefully with other religions. Muslims want to live peacefully with others. I should wanna tell you that कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। इसमें कोई उंगली छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई मोटी होती है तो कोई पतली होती है। लाइक इसी तरह हर एरिया में, हर रीजन में, हर नेशनलिटी के लोगों में अच्छे या बुरे लोग लाजमी पाए जाते हैं। तो किसी स्मॉल टोले की वजह से हम पूरे रिलीजन को ब्लेम नहीं कर सकते, पूरी कंपनी या पूरी सोसाइटी को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि ये पूरा एरिया ही ऐसा है, ये पूरा मज़हब ही ऐसा है। हमें ये नहीं करना चाहिए, ना ही हम इस बात का हकदार हैं कि हम किसी दूसरे बंदे को ये बात कहें। तो वी कांट बाउंड आवर रिलीजन इस्लाम टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिज़म। हम एक्सट्रीमिज़म को इस्लाम के साथ बाउंड नहीं कर सकते या इस्लाम को एक्सट्रीमिज़म के साथ रिलेट नहीं कर सकते। अच्छे या बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। सो टू ट्राई अवर बेस्ट टू गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड पॉजिटिव इमेज ऑफ द इस्लाम एंड द मुस्लिम टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड, सो दैट जो एक लेबल लगा हुआ है कि जब भी एक्सट्रीमिज़म का लफ्ज़ आता है हम उसको जस्ट इस्लाम के साथ रिलेट कर देते हैं, हम उसको मुसलमानों के साथ रिलेट कर देते हैं, हम उसको बम अटैक्स के साथ रिलेट कर देते हैं। दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द रीज़न। एक्सट्रीमिज़म दुनिया के या ज़िंदगी के किसी भी लाइफ मोड में आपके साथ हो सकता है, बेशक आपकी पढ़ाई में हो या बेशक आपके ऑफिस वर्क में हो या आपके फैमिली में हो। कि अगर आप एक हद से ज़्यादा कोई भी काम करते हैं तो वो एक्सट्रीमिज़म होगा, वो एक्सट्रीमिस्ट होगा। तो एक्सट्रीमिज़म को हम जस्ट रिलीजन के साथ हम क्यों बाउंड करते हैं? ये हमारी गलती है। ये एक ऐसा इमेज बन चुका है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। इस्लाम हैज़ नथिंग टू डू विद एक्सट्रीमिज़म, एक्सट्रीमिज़म हैज़ नथिंग टू डू विद Islam. Islam wants peace and we want to spread peace. Even we want to love the person who hates us. May Allah bless Islam and Pakistan with many more progress, and may Allah help us to bring happiness in our country. May Allah save us from any incident. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.